السلام علیکم. کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب, ایف ایس جے, شکیل چودھری صاحب, اور ڈمی میوزیم سے آج ہمارے شو میں آئے ہیں ایک پولیس اہلکار اور ایک پولیٹیکل ورکر جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم بھائی کی حال چال؟ ٹھیک ٹھاک. بڑے عرصہ تک لبتا مر گیا میں, اج اچانک ہی تب ملاقات. تم سندھ میں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو پنجابی بولتے ہو. بھائی اتنے زیادہ تر پنجابی نے یا پشتو, اتنے تو 20% اردو رہ گئی, باقی سارا اسی قبضہ کیتا اتنے. کیا کہنے. بہرحال ایف ایس جے جناب میں تہاڈا بہت بڑا فین ہاں. کیوں بھلا؟ یہ عمران خان دے نال تصویراں پیچھے پیچھے بیٹھے ہوندے نے, اچھا, اور ماشاءاللہ یہ مطلب تسی خان صاحب دی کابینہ شامل تو نہیں ہو گئے؟ عمران خان تمہیں کیوں؟ تم تو سندھ پولیس میں ہو. بھائی جی میری خواہش ہے کہ میں ہوں اسلام آباد دا آئی جی لگ جاؤں. ڈائریکٹ؟ ہاں جی, تم کیسے لگ سکتے ہو؟ اے جویں شہباز شریف لگیا. نہ کرو یار. نہیں انہوں بھی کہو نہ کرو, مینوں کہی جا رہے ہو. آپ کا کیا حال ہے؟ دیکھیں یہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ. یہ عامر بھائی کو اتنا زوتا ہے انہوں نے مل کے, اور وہ شامل ہونا پڑا, مجبوری تھی ہماری. کیوں عامر بھائی کی سنا بہت لٹریشن ہوئی ہے؟ بلا وجہ اپنی کھنس نکال رہے ہیں. یہ بغض ہے آفتاب بھائی, اور کچھ نہیں ہے. 3 لاشیں ملی ہیں, 3 لاشیں, یہ مذاق نہیں ہے. ایسی گل ہے. اچھا یہ بتائیں شہباز شریف کا ساتھ کب چھوڑ رہے ہیں؟ ہم نے کہہ دیا, الٹیمیٹم دے دیا, معاملات سیٹ ہو جائیں گے, سیٹنگ صحیح بیٹھ جائے گی, چھوڑ دیں گے. پکی بات؟ پکی بات ہے, باپ نے بھی کہہ دیا. بلوچستان والا باپ یا اپنے باپ کی بات کر رہے اب یہ آپ دیکھیں, آپ پھنسا رہے ہیں آپ دونوں طرف سے. ہو؟ نہیں, بلوچستان والے باپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے. یہ بھاجی بلوچستان والا باپ بی ایل اے BLA نہیں, BAP, بلوچستان عوامی پارٹی ہے. اچھا شہباز شریف کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. جہاں جہاں دیکھو نا, وہ کہہ رہا ہے اگر شہباز شریف پرائم منسٹر لگ سکتا ہے عقبی دروازے سے آ کر, بیک ڈور سے, تو میں آئی جی کیوں نہیں لگ سکتا؟ واہ واہ واہ. اسی طرح ہی 2 چیزیں ایک ہی دن میں اس سے متعلق اتنی بھیانک آئیں کہ انٹرنیشنلی ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے. ایک تو اس سے ایئر پیس نہیں سنبھالا گیا, ہاں جی, وہ تو پرچیاں کر لی ہیں اور دوسرا, نہیں پرچیاں نہیں, وہ جو بسکٹ اٹھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے سارے اگے کھڑے. اور مشہور کر دیا کہ بالآخر عالم اسلام کو 4 سال بعد ایک بہترین لیڈر ملا ہے جو سینٹر ہے پوری گیلیکسی کا. سب اس کی طرف اس لیے دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ رہ نہ جائے بیچارہ پیچھے. اور بعد میں جو فوٹیج چلائی, پروڈیوسر صاحب ذرا پھر سے تھوڑی سی یہ فوٹیج بھی چلا دیجیے گا. وہ سارے ایکچولی وہ ویکھ کے کہہ رہے کہ وہ یہ نہیں, ویسے واقعی شہباز شریف کے ساتھ لٹرلی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اور میں مذاکر نہیں کہتا, ایف ایس جے کو شاید بری لگے یہ بات, مجھے لٹرلی شہباز شریف کے ساتھ ہمدردی ہے. لیکن اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر بیک ڈور سے آ کے کوئی بن جاتا ہے تو پھر ایکسپوز بھی تو اپنے آپ کو ہی کر رہا ہے نا, تو یہ بھی آئی جی ایکسپوز ہو جائیں گے. بن کے دیکھ لیں. میں کتنے ایکسپوز ہونا, ایک میرے خلاف تقریر ہونی, میں بیک فوٹ تو ہونا, گل ختم. ویسے آئی جی اسلام آباد نے حیران کر دیا, یس, بھائی حیران کر دیا. وہ کہتا ہے کہ یہ تقریر کر کے مجھے ڈرا دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ ڈرا, یعنی میں باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں. کوشش بھی نہیں کی, ڈرا دیا. عمران خان کی اس بات نے کہ او آئی جی کمل کے میں تمہیں دیکھوں گا, اس نے جو دیکھنا تمہیں قانون کے ذریعے دیکھنا. تم بھی 4 کتابیں لے آنا قانون کی, اور تم اتنے ڈرے آئی جی, تم کیسے چلاؤ گے معاملہ؟ باقی بھاجی اگر عمران خان دی گورنمنٹ آ گئی اگلی باری, پھر میں پکا کسی وڈے عہدے تے بیٹھ جانا جا کے. لیکن ایف ایس جے میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. کہانی منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے, ڈرامہ ڈراپ سین کی طرف بڑھ رہا ہے. شکیل صاحب ایسا لگتا ہے نا؟ لیکن بظاہر عمران کے حق میں ہوائیں چلتی محسوس ہو رہی ہیں, اور آپ کو اس کا احساس ہے. جی, مجھے بھی اس کا احساس ہے. کیا وجہ ہے کہ جوں کلائمیکس نزدیک آ رہا ہے میرے خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ with every passing day عمران خان will be walking in a trap or a dangerous situation. دیکھیں آئی تھنک ہی از اویئر, وہ جو کہہ بھی چکے ہیں, لیکن کہنے سے زیادہ اس کو اویئرنیس ہے کہ آسان نہیں ہوگا. بہت بڑی پرابلمز ہیں اس وقت, اکانومی کا جو حال ہے بہت برا حال ہے. سر وہ کر لے گا, مجھے فکر ہے اس کی جان کی. ہاں وہ اس پہ بھی آتے ہیں. دیکھیں اس پہ تو بڑا سمپل ہے نا, کہ آپ کس چیز سے پروٹیکشن کریں گے. سب سے پروٹیکٹڈ آدمی پوری دنیا میں یو ایس پریزیڈنٹ ہے, اور ہمارے لائف ٹائمز میں 2 پریزیڈنٹس پہ حملے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک کو گولی لگ چکی ہے, وہ ہسپتال پہنچ چکا ہے. ایک ہماری لائف میں اسیسینیٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ پروٹیکشن تو کسی آدمی کی نہیں ہے دنیا میں. تو کچھ آپ کو جو ہے وہ توکل پہ چھوڑنا ہی پڑے گا. وہ ہے بہت میجر تھریٹ ہے, بیکاز جو اسٹیٹس کو ہے یہ اس کے لیے اس وقت جو ہے آلموسٹ ڈیتھ تھروز ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی جو حالت ہے اور جو حالت ہونی ہے وہ تو ریٹیلیشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ
लाइकलीहुड है। और लेकिन इस कदर छोटी हरकत, ये जो वो क्या है उसका नाम, जावेद लतीफ। जावेद लतीफ ने क्या बात, जावेद लतीफ छोटा आदमी है, लेकिन जो दुख की बात है कि जावेद लतीफ की इतनी पसली नहीं है कि वो ये बात करे आशीर्वाद के बगैर। हाँ उसके बगैर तो नहीं कर सकता, और आशीर्वाद किसका है? तो ये प्लानिंग हो रही है, अगर इस तरह की प्लानिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये इतने डेस्परेट है, बिल्कुल ये इस कदर शिकस्त खुर्दा है। हैं, बिल्कुल हैं। ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ। जावेद लतीफ सुबह क़यामत तक तपस्या करता रहता, ਵਾਹ तब भी उसे वजारत नहीं मिल सकती थी। नहीं मिल सकती। ਕੀ अगर लफ्ज़- उन्हें वजीर लगा दिया गया तो अब वो हक नमक तो अदा करेंगे। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਈਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। हाँ, आप जैसे 7-8 लाइन में खड़े होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸਬਤਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, मसलन वो क्या लगवा दें? ਐਸਐਚਓ ਲਵਾ ਦਿਓ वाह ਆਗੜੀਆਂ ਦਾ ਥਾਣਾ। आईजी से एसएचओ तक। वाह। अच्छा जी, असल टॉपिक की तरफ आइए। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੀਲੀ ਪੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? दोनों लहदा लहदा मिले। ਭਾਈ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। यार कनाडा में जब शॉपिंग करने सारे निकले थे, मैं भी निकल गया। ओ अच्छा, ये कनाडा है, ओ यस। जान के टॉपिक पे नहीं आने दे रहे, जो हमने बात हाँ करनी जी, है बात सैलाब कीजिए। जदगान के लिए। आप करें उस सैलाब जदगान के सामान की बात कीजिए, उनके लिए। सरके की, चोरी की, डकैती की बात कीजिए। और खुलेआम सरेआम जितनी फॉरेन एड आ रही है सरके उनके लिए। तरके की, चोरी की, डकैती की बात कीजिए, डकैती की। एक तो ऐसा हाथ बड़ी पावर हैगी। अच्छा ये लगे रहेंगे देखिए जान ये- के नहीं आने देंगे। बिल्कुल, ताकि इनके भाइयों की आप बात ना करें एग्जैक्टली। जिन्होंने लूट मचाई हुई है इस वक्त। तो गैर मुल्की इमदाद जो कि मार्केट्स में खुलेआम बिक रही है, मॉल्स में बिक रही हैं चीज़ें, और मतलब और ये जो पार्टीज हैं ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। नोबडी इज टेकिंग द ब्लेम, नोबडी इज टेकिंग द कंट्रोल। डॉक्टर साहब गवर्नेंस है कहाँ? सिंध में कभी आपने जाके देखा है? मैं तो इंटीरियर सिंध जा चुका हूँ और बहुत साल पहले गया हूँ। तो सर ये जंगल का कानून कैसे चल रहा है? आप इसे कहते हैं डाकू राज। जब आप डाकू बिठाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। ये सजा जरदारी की नहीं है, बिलावल की नहीं है, ये अहले सिंध की सजा है। तसाहुल की वजह से, एपथी की वजह से, इनएक्शन की वजह से, अंधी तकलीद की वजह से। लो आज भी भुट्टो अगर जिंदा है तो मौज करो फिर। और इस वक्त मैं आपको बताऊं जो अंदरून की सूरत हाल है, सैलाब तो लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ है। इससे पहले ही बहुत बुरा हाल। इस कदर राइप थी सूरत हाल कि अगर एक दौरा कर लेता इमरान खान इंटीरियर सिंध का, कुश्तों के पुश्ते लग जाते। इस वक्त जो साहब तिल मिला रहे हैं ना, जी। सबसे ज्यादा आप यकीन कीजिए PMLN में आपको वैसे ही एक जाली सा इरताश नजर आता है। हकीकतन जो बंदा तिल मिला रहा है ना, यूं करके, ये पोजीशन उसकी लगातार, एक्चुअली he is trembling but he shows that he is shivering with anger। वो डर रहा है, खौफ है, खौफ उसका, वो अब तक जो कुछ कर चुका है वो उसके सामने आना है। लेकिन मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा इमरान खान से, इनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि इनका मशवरा वो सुनता भी है, मानता भी है, कि अब फॉर अ चेंज थोड़ी सी अपीजमेंट की बात करनी चाहिए। अपीजमेंट किसकी? और अपीजमेंट वो नहीं जो कमजोरी से स्टेम करती है, जी। अपीजमेंट वो जो हालात को देखते हुए कि भाई जो हो चुका है ना, रेकन्सिलिएशन की तरफ सर जाना पड़ेगा, वरना हालात मजीद खराब होंगे। इमरान चाहे इक्तदार में आ जाए। रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए लोगों के साथ, अवाम के साथ। नहीं सर, लीडर्स भी जो है ना, कौन से बहरहाल leaders? पब्लिक लीडर्स हैं। अगर लोग देखें, आप एमनेस्टी भी तो देते हैं ना, जी, टैक्स एमनेस्टी अगर मिल, कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस वो पे तो बार बार कह चुका है, तो सबको मिलनी चाहिए वो तो एमनेस्टी। बार बार कह चुका है, पैसे वापस कर दो, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो पैसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी बड़ी है हद आपके तक साथ। बड़ी हद तक पैसे वापस हुए भी हैं। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मजीद हो जाएंगे। उन्हें मेन स्ट्रीम से निकालिए मत। शकील साहब सैलाब पे कोई बात करना चाहते हैं। डेरा गाजी खान राजनपुर से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी जो पेशावर भिखारी हैं उन्होंने और जराइम पेशा लोगों ने ऐसे ग्रोह बना लिए हैं जो इमदादी सामान को लूट लेते हैं। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की तो ज़रूरत है। देखिए जो इमदादी सामान वो लूट रहे हैं ना, वो लोग अपनी मेहनत के साथ या कोशिश करके उन लोगों को चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन वो इमदाद जो कि बाहर के ममालिक से आ रही है, जो कि आला अहदेदारों के घरों में भी, उनके गोडाउन्स में भी देखी गई है कि वो
اسٹاف کر رہے ہیں, دوائیاں غائب کر دی گئی ہیں. خیمے 1500 خیمے جی سر. ایک رائس مل سے نکلے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. کمبر کے جو میجسٹریٹ ہیں انہوں نے ریڈ کیا ہے, اور وہ ایم پی اے ہیں پی 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 کے, جی سر. ان کی رائس مل پہ ریڈ ہوا, اور 1500 خیمے, اس کے علاوہ راشن کے بیگز, جی یہ سارے وہاں سے نکلے ہیں. سر وہی نا, لوگ ان کو اسٹاک کرنے لگ گئے ہیں. دیکھا جائے تو شناختی کارڈ لے کے جو لوگوں کو پیسے دینے ہیں حکومت کی طرف سے, ان کے نام لکھ کے وہ لوگ خود پیسے لے رہے ہیں ان کو کاؤنٹ کر جی کے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیں کہ آپ کیسے جو ہے لوگوں کی مدد کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ ریسکیو اینڈ ریلیف. جی ٹھیک ہے نا. ریسکیو سب سے پہلی چیز ہے کہ جان بچائی جائے. 1500-1600 جانیں جا چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی فیلئر ہوا. اس کے بعد ریلیف کا جو پروسیس ہے وہ اس وقت آن گوئنگ ہے. لوگ بالکل آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. دادو میں تو بہت برا حال ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. جو کیونکہ رائٹ آؤٹ فال ڈرین جو ہے انڈس کی, وہ آپ نے بلاک کی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ. وہ پانی نکلتا ہی نہیں ہے, پانی کھڑا ہوا ہے ابھی تک. اس کی وجہ سے وبائی امراض, لوگوں کی تکلیف, مچھر, ڈینگی, یہ سارا. اوپر سے جنہوں نے آپ کی مدد کرنی ہے وہی آپ کو لوٹ بھی رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی وہ چل رہا ہے. احساس ہی نہیں ہے. ٹریلر ہے قیامت کا. سر جو امداد آ رہی ہے وہ غائب کر لی گئی. جو اشیاء ہیں ان کی پرائس آسمانوں پہ پہنچا دی گئی. پیناڈول اسٹاک کر لی گئی ہے. کمپنیز نے بند کر دی ہے. جن کے پاس مینوفیکچرڈ موجود تھی انہوں نے بلیک کرنے کے لیے غائب کر دیا ہے. اس کے بعد جو لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں ہاں جی. مدد کرنے, جی ہاں. ان کو بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے. ان کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے. جی ہاں. کہ نا یہ ساری چیزیں ہیں. یہ قوم فائنینشلی بینکرپٹ نہیں ہے, مورلی بینکرپٹ. مورل اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو مدر آف آل پرابلمز. ایف ایچ اے آئی جی رہن دو, مینوں دپالپور دا ایس پی لوا دیو. دپالپور دا ایس پی کیسے لگ سکتے ہو گدھے؟ دپالپور ڈسٹرکٹ ہے کوئی, اوتھے دا کی ہوندا, وہاں پہ اے ایس پی لگ سکتا ہے. سٹی ایس ایچ او لوا دیو. ایس ایچ او سٹی اس طرح کو, ایس ایچ او صدر, ایس ایچ او سٹی. آفتاب صاحب میں نے جو مدد کی ہے نا لوگوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, چاچا, بھتیجا, بہن, گڈ فار یو. دیکھیں ادھر سے راشن پکڑا, ادھر مدد کر دی. اس کو روب کیا, اس کو پے کیا. یو روب پیٹر ٹو پے پال. یہ کوئی نیکی نہیں اللہ کے نزدیک. دیکھ لینا, میرا کام تنبیہ کرنا ہے کہ برائی کے وطن سے اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی. بینک روب کر کے کسی مریض کا علاج نہیں کروا سکتے. نائک فلم چ نیل کپور نے یہ کپڑے پائے ہوندے بھائی. یار ایسے ہی پہنے ہوتے ہیں. آہو میں صحیح کہہ رہا. چلو پی ایم دا انٹرویو کر رہا ہوندا. پی ایم تو ہوتا ہی نہیں, اس میں سی ایم ہوتا ہے. فلم وہ بھی دیکھی. امریش پوری ہوتا ہے نا, جو کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو. ارے کیا تھا وہ, ارے یہ سیاست کانٹوں کا تاج ہے, پہن کے دیکھو پھر پوچھوں گا. پھر انل کپور پہن لیتا. جی پھر پہن کے دکھاتا ہے, پھر کہتا ہے ہنر عام ہی. جی سر چلتے ہیں اپنے کیفے پیٹرن کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے جی خالد حسن چوہان. خالد صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا لاہور سے تعلق ہے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. خالد صاحب از اے فرینڈ, آئی نو ہم اوہ فار سو مینی ایئرس. یہ کمزور بڑے ہو گئے ہیں, میں آج بڑی دیر بعد ان پہ نظر پڑی ہے. خالد صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بس میری گزشتہ کافی دنوں میں سے طبیعت خراب تھی, اس وجہ سے کوئی ویکنیس ہو گئی ہے. لگ رہا ہے کہ یو سیم ٹو ہیو لاسٹ اباؤٹ 5 kgs. یا یو آر رائٹ. بھائی تہاڈے دوست نے. ہاں جی. اچھا جی یہ بتائیے خالد صاحب, شخصیت مرد ہے؟ جی مرد ہے. زندہ؟ زندہ. ایشیائی؟ ایشیائی. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ نو. یعنی ایشیائی ہیں اور ساؤتھ South ایشین Asian نہیں نہیں ہے. ہے. چائنا, مڈل مڈل ایسٹ. ایسٹ میرا خیال پہلے جایا جائے. اچھا جی تعلق مڈل ایسٹ سے ہے؟ یس. مڈل ایسٹ سے ہے تو گویا ان ممالک کے ساتھ تعلق ہے جو عریبین سی کے اوپر ہیں. جی. جی عریبین سی کے ساتھ تعلق. عربین سی یعنی کہ یو اے ای ہو گیا, کویت ہو گیا, بحرین ہو گیا, عمان ہو گیا, قطر ہو گیا. سعودیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب, یہ سارے ممالک ہیں. یہ پرسنالٹی جو زندہ ہے اور ان ممالک سے ہے. یو اے ای اور دیر از اے نیو رولر ان عمان کابوس کے بعد. کابوس کے بعد. یو اے ای کا شیخ محمد از اے بگ نیم. مختوم. راشد المختون از اے بگ نیم. ہے. پھر دبئی کا شیخ محمد بھی ہے. دبئی کا شیخ سر ابو ظہبی کا, ابو ظہبی کا بھی ہے, مبارک النایان. مبارک النایان ہے ابو ظہبی, اور یہاں کا شیخ محمد بن راشد المختوم. اب آ جائیں شعبے پہ آئیں گے تو پھر ہم نیرو کریں گے اس کو. سیاست و حکومت.
ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी मोस्ट फेमस तो यही है ना, यूएई। इराक में कोई शख्सियत, इराक में कोई ऐसी सच नहीं है इस वक्त। कोई ये अरेबियन सी की बात हो रही है। इराक हौसी बागियों में से कोई, ओसी बागी भी इतने कोई नहीं, कोई ऐसा नाम नहीं है। जॉर्डन की कोई शख्सियत? जॉर्डन भी आफ्टर किंग हुसैन ब्रदर। लेकिन वो अरेबियन सी पे आता है, आई डोंट थिंक Yeah. सो। रेड सी है, रेड सी भी और रेड सी भी। रेड एंड डेड सी। ਡੈਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਚ ਬੰਦਾ ਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ वो वो- डेड सी वो है। डेड यूएई सी को है। आइसोलेट करें, अच्छा जी, ताल्लुक यूएई से है? नहीं ईरान का कर लें। ताल्लुक ईरान से है? नहीं मुल्क ही नहीं डिटरमिन हो क्योंकि हाँ रहा। मुल्क इतने ज्यादा हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, बहरीन भी है, पैलेस्टीन, कतर। पैलेस्टीन इज ऑन रेड एंड डेड। मेडिटेरेनियन पे भी है। मुझे याद है टर्किश फ्लोटिला गया था। इवन इजराइल पोर्शंस और ऑन द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन से डायरेक्टली गा Direct. फिर तो ये लगता है डेफिनेटली अरेबियन सी डिटर्मिन्ड है। अरेबियन सी बेहतरीन एक वो बन जाता है। अच्छा नहीं, कुवैत और इराक को एलिमिनेट करने के लिए एक क्वेश्चन में हो सकता है कि जंग में वॉर मुलविस में, रहे। हाँ। वॉर में, जॉर्ज बुश की वॉर में, बड़े बुश की डेजर्ट वॉर में। स्टॉर्म 1 हम्म। जुलाई 1990। अच्छा जी, ये मुल्क चौहान साहब डेजर्ट स्टॉर्म 1990 में इन्वॉल्व था? नहीं नहीं ये दोनों यानी और इराक कुवैत- है ना कुवैत है, दोनों निकल गए। 10 सवाल। 10 सवाल हो गए। कतर और बहरीन कतर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडकॉम हेडक्वार्टर्स एंड अल जजीरा हेड ऑफिस। एंड देन फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप। कतर इज अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोहा टॉक्स की वजह से भी, तालिबान के हवाले से भी। कतर इज इम्पोर्टेंट without a doubt. And Saudi Arabia has mended fences with Qatar. They tried to isolate it, but could They not do it. failed. जिस तरह some people tried to isolate Imran Khan and failed. So mending fences is the only way out. लेकिन और क्या रह गया? कतर है, कतर और बहरीन रह गए बेसिकली। बहरीन रह गया, बहरीन ओमान में- ओमान हमने नहीं पूछा। हाँ, ओमान, यस। कतर की तरफ जा रहा है ध्यान भैया। कतर को किसी और के साथ ब्रैकेट कीजिए। दो चीजें हैं, एक वर्ल्ड कप आ रहा है, नहीं दूसरा सर, एक चीज तो कतर की हाँ। तो एक भी पकड़ सकते हैं। कतर की एक चीज किसी और के साथ मिलती हो ताकि हम दो मुल्कों को एलिमिनेट करें। And they are neighbors actually, Qatar and Bahrain. ओमान इज नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसर Hmm. और गैस प्रोड्यूसर। छोटा मोटा तो पाकिस्तान भी है ऑयल प्रोड्यूसर, हाँ। लेकिन नोन फॉर ऑयल हाँ। प्रोडक्शन ये है ये मामला। है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ for ਕੋਈ oil 10-12 production। ਲੀਟਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ बहुत सारा निकलता ज़्यादा है, निकलता ज्यादा निकल रहा है। हजारों लीटर निकलता है। ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ वो इतना नहीं है कि सस्ता किया जा सके। अच्छा जी। Qataris, what are they known for? Nothing. कतर एयरवेज, फीफा वर्ल्ड कप, गैस रिच कंट्री, हाँ, कतरी खत। ਹਾਂ ਕਤਰੀ ਖਾਤ ਤੋਂ ਫੜੋ पूछें जी। अच्छा जी, ताल्लुक कतर से है? नहीं Then we are missing some country. ओमान। नो और नहीं भाईजान, आपसे नहीं पूछ रहे, आपसे वो- तो मैं आप देखिए जितनी दफा आपसे पूछा गया है नाम लेके पूछा, चौहान साहब, खालिद साहब, ये क्या बताएं। डी में साहब जाएगा फटाफट- या काउंट होगा? अच्छा ऐसे जी। ही काउंट होगा। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਹਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ Now we are बहरीन is the only country. बहरीन में कौन है? हुक्मरान ही होगा उसका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। क्या करें भाई फिर? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 10 ਸਵਾਲ ਪਏ ਨੇ फटाफट करो मुसलमान पूछे, मुसलमान। सर डेफिनेटली मुस्लिम। इजराइल तो नहीं हो सकता। इजराइल इज नॉट ऑन द अरेबियन सी। अरेबियन सी पे नहीं है। यही असल प्रॉब्लम जो है ना, वो ये है, अरेबियन सी वाली है। हमने इतने ममालिक डिस्कस कर लिए हैं, आखिर देख लेना ये निकलेगा सऊदी। यमन देखिए इज जी, देयर, यमन इज यमन बड़ी हाँ। अहम रियासत है, या आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, आजकल नहीं, तो नहीं। खास तौर पे इट हैज टू बी अ प्रोमिनेंट नेम। ऐसे तो नाम नहीं हो सकता कि छोटा मोटा कोई नाम हो, बड़ा ही नाम होगा। और है ये सियासत और हुकूमत, तो मतलब है हुक्मरान। मेरे ख्याल यमन का नाम लेने में हर्ज नहीं है। वो कोई रह नहीं गया। यमन और बहरीन, ये दो रह गए बस। हम्म। ज्योग्राफी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, क्योंकि देखिए इतने जी, इसराइल मुल्क नहीं आपने है। इसका मुल्क जितने भी सोच लिए थे वो तो नहीं है। इसका मतलब है वी आर मिसिंग सम कंट्री वी आर मिसिंग सम। दैट टचेस द ओमान अरेबियन का सी सम। ओमान का उन्होंने खुद ही बता वो दिया तो है कि वो उनका नहीं। नहीं है। ओमान तो वैसे भी अरेबियन सी पे है। डेफिनेटली अरेबियन सी है, बट ही सेज नो, उन्होंने हमें फैसिलिटेट कर फिर रह गए आपके ये जो मुल्क हैं, नहीं, ये जो एक बहरीन में से बहरीन कोई बहरीन की कोई ऐसी शख्सियत जो इस शो नहीं। के लिए वो आपको नहीं समझ में आती। वो करे। बहरीन, यमन,
यमन भी है, बट यमन में कोई ऐसा नाम नहीं है। हूथी बागियों में से उसी बादियों में कोई कोई ऐसा उसी बागियों में से नहीं मतलब अभी निकल के पूछें 100 लोगों से तो कितने किसी को लोग नहीं बता पता होगा, सकते? नहीं बता सकते। आई थिंक ज्योग्राफी में गड़बड़ है, हम्म जो हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना है। इजिप्ट का तो दूर इजिप्ट दूर तो से सवाल ही पैदा अफ्रीका है ना दूर वो से तो। नहीं, ना वही कह रहा सिर्फ हूँ ना अफ्रीका है भाई। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे यस नाम रखा है कि देखें तो सही ना कौन कौन से हैं। वो रेड सी है और इजिप्ट है, मेडिटेरेनियन है। ये आर है। यू श्योर जॉर्डन इज नॉट ऑन द अरेबियन आई एम सी? ट्राइंग टू विजुलाइज। देखिए जी, जॉर्डन के इर्द गिर्द क्या देखें, एक तो जॉर्डन जो है वो आपका वेस्ट बैंक जो है वो तो रिवर है, उसको देखा जाता है, और इसराइल के साथ वो टच करता है। क्या कोई उसका ऐसा हिस्सा है जो अरेबियन जो सी अरेबियन सी को टच करता है? दैट आई एम नॉट श्योर। मी नीदर। जॉर्डन के और क्या और जॉर्डन जो है ना, एक्चुअली जॉर्डन वाज क्रिएटेड ऑन पैलेस्टीनियन टेरिटरी इन 1921. 79% of Palestine's territory was given to Jordan. There was no country by the name of Jordan Yes, before yes, हाँ, that. there wasn't. ये तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, कि जब वो साइक्स पीको Yes. तो उसमें कार्विंग अप हुई। और सिर्फ ये नहीं कि वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी दी गई, जो किंग लाया गया वहाँ पर वो भी हिजाज हिजाज से आया हिजाज से आया था। जी, वो शरीफ ऑफ मक्का, उसका बेटा था। उसके बेटे तीन अब्दुल्ला। जगह पे लगाए गए, एक इराक में, एक जॉर्डन में, और तीसरा आई थिंक नॉट सीरिया। दो तो मुझे पता है। किंग अब्दुल्ला, दैट्स अ बिग नेम। And he was killed actually by a Palestinian. हसन का बाप, बल्कि इसका दादा अभी जो है अब्दुल्ला, इसका दादा अब्दुल्ला का हुसैन दादा का वालिद। हुसैन का अब्दुल्ला बिन हुसैन बिन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन हुसैन हमारे बिन- सिंध में भी यही कल्चर है ना, दादे का नाम पोते का पोते और का। पोते का जी, दादे का। यानी सिर्फ दो नाम होते हैं? ज्यादातर दादे का नाम पोते को रखा जॉर्डन आई तो एम जाहिर वेरी, बात है फिर दो ही नाम रह गए ना, हाँ, मुझे दादा पढ़- पोता एंड देन दादा मुझे and पढ़ना पड़ेगा जॉर्डन के बारे में। मेरा एक दोस्त वहाँ अभी रिसेंटली गया है। हमारा और कोई So he is अपेरेंटली asking कोई me. और बनता नहीं, इंटरेस्टिंग और कोई नहीं बनता दूर दूर तक। क्वेश्चन कितने हो गए? 11। 11 11 यार, फिर आगे हाँ प्रोसीड मतलब करें। खैर मैं कह proceed रहा किया हूँ, जाए। खोल के yes. खेलो भाजी की होगी। आप कौन कौन सा आप क्या शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि देखिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हमें रहेगी सऊदिया हैं, भी पूछ लेना चाहिए? हाँ, सऊदिया भी है और जॉर्डन क्यों जी, है। सऊदिया के साथ ताल्लुक है? नहीं जॉर्डन के साथ ताल्लुक है? तो जी तल्लक है। अच्छा जी, मतलब ताल्लुक। वो जियोग्राफी का वो सिलसिला है ना जो। जॉर्डन के साथ आपको यकीन है कि जॉर्डन टच करता है अरेबियन सी को? जी बिल्कुल टच क्योंकि कर सऊदिया तो थोड़ा सा टच करता है। और दिस इज न्यूज़। ये भी हो सकता है ना, कुछ लोग रेड सी को समझते हो कि जी अरेबियन सी ही की एक्सटेंशन है। ओशंस की एक्सटेंशंस होती हैं। नहीं, ये हम क्लियर कर लेते हैं ना जब कि अरेबियन सी, रेड सी, डेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये हम जब क्लैरिटी के साथ कह देते हैं तो फिर गुंजाइश रहती नहीं। लेकिन चलें, हमारी एजुकेशन हो जाएगी, बाद में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जॉर्डन ऊंट किसी करवट तो बैठा ना कि इट इज जॉर्डन। You've landed somewhere on the अच्छा land. जी, जॉर्डन में या अब्दुल्ला है जो जिंदा है, या अब्दुल्ला है, पेट्रा है या अब्दुल्ला क्योंकि है। हुसैन भी जिंदा नहीं है और बड़े बुजुर्गवार भी जिंदा नहीं तो है। the ruler of सियासत और Jordan. हुकूमत के साथ ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, और उनका जो है ना एक चचा भी है ना, तलाल, हाँ, तलाल तलाल। मैन is हु also- वाज सपोज्ड टू बी द बिल्कुल। किंग। दलाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हुसैन ने चंद दिन पहले अपने मरने अपने से बेटे को क्राउन उसको हटा के अपने बेटे को Crown क्राउन Prince प्रिंस बना बना बिल्कुल लिया। ऐसा ही है, बिल्कुल Yes. ऐसा ही है। तलाल वाज इन माय माइंड कि एंड तलाल तलाल हैज अ पाकिस्तानी कनेक्शन आल्सो। Because उनकी of जो the बीवी wife, है, हाँ, wife, yes, wife. सरवत कराची से तलाल। उनका ताल्लुक है। प्रिंस तलाल की अपना एक आलिया भी थी। आलिया किसकी बीवी थी? वो तो हुसैन की बीवी भी थी भाई मे बी। जी, जिसके ऊपर उन्होंने जॉर्डेनियन एयरलाइंस का नाम रखा था। आलिया इसको बाद में देख लेते हैं। क्या पूछा जाएगा? रूलर रूलर तो मेरे ख्याल नहीं पूछेंगे ये, वो Ruler- तो दैट वुड बी टू ऑब्वियस। क्यों? तलाल का पूछा जा सकता है। रूलिंग फैमिली क्या है कि सर हमारे पास सवाल जाहिर है। करने के लिए बहुत है सवाल है। क्यों करना है? पूछ ले सीधा सीधा, रूलर है नहीं है सर। तो फिर अगर तलाल पे चले देखें, जाएंगे। अगर रूलिंग फैमिली पूछा ना हाँ। तो ही विल से यस, हम्म। तो इसका मतलब है फिर या तलाल है या अब्दुल्ला। या या अब्दुल्ला है। अच्छा, फिर नैरो चलें, डाउन चलें। करेंगे। और साहब, ये अब्दुल्ला जो है ना मेरे ख्याल में डॉक्टर है ना बाय प्रोफेशन। जी जी जी, ही इज डॉक्टर। ये बताइए कि ताल्लुक रूलिंग फैमिली से है जी ऑब्वियसली। इस वक्त वो रूलर ऑफ जॉर्डन है। जी
जी King Abdullah. बाय प्रोफेशन इज अ डॉक्टर. यस आपने किंग अब्दुल्ला पूछा है, अरे, मुसीबत में डाला. नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस. G, next personality. इन हाउस. जी हाँ. मर्द, जी. जिंदा, नो. एशियाई, नो. ये ना जिंदा पूछेंगे ना एशियाई. अमेरिकी, ओह, हाय. अमेरिकन. जी सर. देखा एक अमेरिकी मर्द जो जिंदा नहीं है. की फायदा होता है अफ्रीकी होने से, जिंदा ही नहीं। डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. ये नो क्या किया तुम? खुशी पिछला बंदा जिंदा सी. नो सर, 1972 के बाद. के बाद 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. जी सर, 1997 से पहले. between 97 72 and 97. 97. 72. वजह शोहरत, अब इसका शोबा डिटरमिन कर लें. सियासत और हुकूमत, नो सर. शोबिज़, नो सर. इल्म फजल, जी सर. इल्म फजल. इल्म फजल, राइटर, मुसन्निफ, नॉवेलिस्ट. 97 से पहले. नॉवल निगार है, नो सर. तो दानिश्वर होगा फिर. दानिश्वर, कोई फलसफी. 10 सवाल. Be journalist also. विल दूरा, विल ड्यूरां. एग्जैक्टली. वी हैव डन विल दूरा ऑलरेडी. Yeah, but we've always. जी जी, नहीं, लेकिन हमने अब तो गुंजाइश है. रिलैक्स कर दिया है, पर्सनालिटीज कैन बी रिपीटेड. क्योंकि पीरियड वही आ रहा है. अच्छा, कोई बहुत बड़े फिलोसोफर, जी सर. तारीख पे भी लिखा. जी सर. उनकी बीवी भी. एरियल दूरा उनकी अहलिया थी. जी सर. जिस आपने तरह- विल दूरा. Will Durham. आफ्ताब साहब कोई फिल्म देखी आपने? हाँ जी, रात को देखने की कोशिश की और बहुत इबरत हुई मुझे. क्यों? कौन सी फिल्म? वो एक इंडियन फिल्म है जो टॉप 10 में है और आजकल नंबर 1, एक विलन रिटर्न्स. ओए होए. अच्छा फिल्म वाले ने पता आप चल जो है गया. ना यू आर ससेप्टेबल टू क्लिक बेटिंग. नहीं, हाँ जी, क्लिक बेट नहीं, क्लिक बेट उसमें था भी नहीं कुछ ऐसा. मैंने कहा मैं देखूं तो सही, नंबर 1 है ना. वो फिल्म के नाम पर मौकरी थी. ओके. और मैं बल्कि अफसुर्दा इस पे हुआ हूँ कि टैलेंट ज़ाया हुआ है उसमें. तो कौन? वो जो हीरो है ना, हम्म. वो गौतम गालिबन उसका नाम है. इज अ गुड लुकिंग बॉय, बैड एक्टर दो. उसका नाम है अर्जुन कपूर. हम्म. गुड लुकिंग है. अगर ट्रेनिंग अच्छी हो, डायरेक्टर अच्छा हो, उसको परफॉर्मिंग डायरेक्टर चाहिए. उसको महज डायरेक्टर नहीं चाहिए, परफॉर्मिंग डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि इन्हें परफॉर्म नहीं करना आता ना इसे करना आया. वो 2 लड़कियां बहुत अच्छी हैं, वो भी ज़ाया हुई. अर्जुन कपूर साहब तो मेरा ख्याल है शुड बी वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स आल्सो, के लीड रोल उसमें ले लिया. लेकिन माठी स्टोरी, इतनी इंट्रिकेट स्टोरी, एक फजूल से नावल की है. उस दौर का नावल हो सकता है जिस दौर में लोगों के पास वक्त गुजारने को और कुछ होता ही नहीं था. अजीब व गरीब कहानियां पढ़ा करते थे. सर आप तारीफ कर रहे हैं, आप बताइए कि आपको अर्जुन कपूर वैसे कैसा लगता है? अगर मुंह बंद रखे ना, इज गुड, इज गुड लुकिंग. लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आइंदा भी अब वो मुझे बुरा लगता रहेगा, भले से उसका मुंह बंद रहे. इसकी क्या वजह से? इसकी वजह है कि आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ हिम. ओए होए. जब आप एक माठी फिल्म में माठा काम कर लेते हैं ना, बाज लोग माठी फिल्म में अच्छा काम कर लेते हैं तो, और बाज लोग अच्छी फिल्म में माठा काम करके भी बच जाते हैं कि भी ये जीते हुए लश्कर में है. ये 92 का स्क्वाड कहलाता है, 83 का स्क्वाड कहलाता है. तो ये एक्चुअली एक माठी फिल्म का इंतहाई माठा हीरो था बेचारा, और बोलना उसे आता नहीं. जालसाजी उसके फिक्रों से टपकती है और वो कभी कामयाब नहीं होगा. फिर एक और बंदे ने मुर्दा खराब किया है इसमें अपना, किसने? जॉन इब्राहिम. ओए होए, वो तो वो शक्ल से लगता है जैसे जॉन इब्राहिम जिसको मैं जानता हूँ उसी जॉन इब्राहिम के वालिद साहब हैं, और इन्हें एट अ टाइम डेंगी भी हो गया, गैस्ट्रो भी हो गया, कोरोना भी हो गया, और एक आध फेटल डिजीज भी होगी. ओए, एनी और वायरल वो- डिजीज, वायरल इलनेस. मैं समझता हूँ कि वेनेरियल डिजीज टाइप की चीज, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसे हो, लेकिन महसूस ये हुआ है. और उसकी टेकिंग इतनी माठी है कि वो लगता है. और बाकी मैंने कहीं टेलीफिल्म भी पढ़ा है कि उसको बनाया ही टेलीफिल्म के तौर पे गया था.
ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ वही ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਮੈਂ वजह है ਇੱਕ कि बॉलीवुड खत्म होता चला जा तबाह हो गया है। मैं कहता हूं बॉलीवुड के साथ वो हुआ है जो पीडीएम के साथ हो रहा है। रहा है। हालांकि सही वही बात है कि ये आउटसाइडर्स नहीं है, इनके तो अपने पेरेंट्स इस फील्ड के हैं, लेकिन अच्छा अच्छा, वजह क्या है? पीडीएम की बात कहाँ से आ गई बीच में? ये वही किरदार, सेम लोग, सेम चेहरे, सेम माहौल, सेम सर्किट, सेम सिनेमा, सेम असेंबलियां, सेम मेंबर्स, सेम शक्लें, सेम लूट मार, सेम सेम तरीका वारदात, मुनाफकत। और फिर नहीं चला। अफसोस, फार्मूला होता है। देखें, एक कामयाब फिल्म का भी फार्मूला होता है। अब मुझे समझ आई कि इन्हें फिल्म क्यों कहते हैं, कि तुम तो खुद एक फिल्म हो। हाँ, एक कामयाब फिल्म का भी फार्मूला होता है और एक कामयाब सियासी इनिंग्स का भी फार्मूला होता है। ये दोनों तरफ फार्मूले पिट गए, अब नए फार्मूले आएंगे तो बात बनेगी। नाजरीन, देखा आपने कैसे फिल्म को और सियासत को जोड़ा है इन्होंने? कमाल है ये भाई, इन- क्या देखते रहे रात भर? भाई सियासत भी जोड़ दी, फिल्म भी जोड़ दी। एंजॉय करें आप, अपना खून जला रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। इसके इन रहने की वजह कोई इसकी एक्टिंग, काम, फिल्म्स नहीं है, सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि बस उसी की वजह से मुझे नहीं पता तो उनका- रिश्ते को 20 साल बढ़ी है मलाइका अरोड़ा खान। है वो मलाइका रहता ही, अच्छा। उसने अपना हस्बैंड छोड़ा इसके लिए था ना। बड़ी होना छोटी, वैसे इसके लिए हस्बैंड छोड़ा जा सकता है। सही गल है। बतौर अदाकार नहीं, बतौर बतौर- शौहर उसने सिलेक्ट किया ना, तो वो एक गुड लुकिंग, अच्छा प्यारा, अच्छा बच्चा है। तो इट वाज अ मिसकैरेज ऑफ फिल्म मेकिंग। आफ्ताब साहब, ये छोड़ें, इंडियन फिल्में चलती रहेंगी, हमारी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है ये बताएं। आपकी Exactly. आपकी इंडस्ट्री ने इंशाल्लाह डेवलप करना है। आप कुछ हिस्सा डालेंगे उसमें आगे? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्या दम खम की बात नहीं है। फिल्म के लिए दम खम चाहिए होता है, वो सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम नहीं है। तब चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी अली अवैस। मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आ जा वेख मेरा इंतजार आ जा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू हो सुखी वसना जे तू चाहना है मेरे गाल बाएस जहान अंदर सुखी वसना जे तू चाहना है मेरे गाल बाएस जहान अंदर आजा बैजा रिंदा दी बज़म अंदर इत्थे बैठ देने खाक सारे आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार ते